Good morning, fourth class. So it is your EVS class today, and we are gonna start with a new unit, and the name of the unit is food. All right, the unit's name is food. So in this unit we will study more about food. तो हमने लास्ट चैप्टर में क्या किया था, हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था. सो लास्ट चैप्टर जो हमने कल किया है, इट वाज अबाउट रूट्स ऑफ द प्लांट्स. And so we are done with that unit, and we are going to start with a new unit, and it is about food. So we'll study more about food in this unit. So now, what is food? Food is something which we need to survive. खाना हमको एनर्जी देता है. फूड वो होता है जिसको खा के हमारे अंदर एनर्जी आती है, and we are able to work, we are able to live. If we'll not get food for some time, then we'll die. And every living being on this earth need food. हर किसी को food की जरूरत होती है. Even the plants which gives us food also need food, and we have read that what all the things on which a plant survive. So a plant need air, plant need water, they need soil, they need nutrients, and they need sun, heat to survive. So that is their food. In the same manner, human beings, animals, and small insects, every living being needs food to survive on. They need energy, and that energy is derived from food. So in this unit we will study about food. Now what is the objective of this chapter? You will get to know कि खाना हमारे पास कैसे आता है. As the name suggests, how we get our food. food हमारे पास कैसे पहुंचता है, and food कौन grow करता है, who grows the food, and how the food reaches to mandi, and then to market, and then to houses, and what all things are included in the food, right? So let's start with the chapter. Do you know where is food grown, who grows it, and how does it reaches our house? खाना कौन grow करता है, और खाना कहाँ पे grow होता है, कौन grow करता है, और हमारे घरों तक वो कैसे पहुँचता है. Now see this diagram, see this chart. There is a farmer who is growing crop and fruit vegetables in the fields, and then after the food is grown, it is harvested. ये food harvest होके कहाँ जा रहा है? ट्रक्स के अंदर लोड होके मंडी में जा रहा है. मंडी एक वो जगह होती है जहाँ पे सारा खाना पहुँचता है. All the vegetables, all the fruits and all the crops and grains reaches this मंडी. दिल्ली में सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? आज़ादपुर मंडी जो है, जहाँ पे सारे सब्जियाँ, सारे फल, सब कुछ वहाँ पहुँचता है. यहाँ के बाद स्मॉल रिटेलर्स, वेजिटेबल वेंडर्स, जिनसे हम जाके सब्जी खरीदते हैं, वो यहाँ से सब्जी लेके अपनी दुकानों पे लेके आते हैं, अपनी शॉप्स पे लेके आते हैं. यहाँ से सब्जी लेने के बाद आपकी मदर या आपके फादर या घर में जो भी आपके यहाँ सब्जी या खाना प्रोक्योर करता है, वो मार्केट से जाके लेके आता है, और फिर आपकी मदर घर में आके खाना बनाती है. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ how do we get our food. It is grown by farmers in the field, then it is transported to the mandis. From mandis, small vendors, they go and buy that food. From the small vendors, your parents, they go and get the food, and then it is cooked in your home. This is the journey of the food from the field to our houses. The farmers work in the fields to grow the plants. Growing plant is a long process. अब farmers जो हैं वो यहाँ पे ग्रो करते हैं, एंड ये जो ग्रोइंग का प्रोसेस होता है, इट इज़ अ वेरी बिग प्रोसेस. आपने कभी देखा है, आप घर में नर्सरी से छोटा सा प्लांट लेके आते हो या सीड लेके आते हो, उस सीड को आप लगाते हो. जैसे मैंने आपसे बोला कि आप सीड को ग्रो कर देना, कल आई टोल्ड यू दैट आप एक सीड को लाके ग्रो कर देना, ठीक है, अपने पॉट में डालना और देखना कितना टाइम लगता है उस सीड को ग्रो होने के लिए. सो ग्रोइंग फूड इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. उस जो खाना जो खेतों में ग्रो होता है, उस पे बहुत सारे चीज़ें जो हैं उन पे डिपेंडेंट होता है. बारिश कैसी होगी, मौसम कैसा रहेगा, तूफान आ गया, अगर आंधी आ गई, बहुत बारिश हो गई, फसल कटने पर तो फसल खराब हो जाती है. बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं. रैट्स क्रॉप को ख़राब कर देते हैं. काऊ खेतों के अंदर जंगली जानवर घुस जाते हैं, वो क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं. सो growing food is a very difficult process, and it is a very long process. A farmer does a lot of hard work to grow food in the field. Now see, this is the process. Plowing fields. पहले खेतों को जोता जाता है. पहले के टाइम में कौन करता था ये काम? पहले के टाइम में तो या तो एक आदमी वो हल से
खेत को जोतता था. देन व्हाट हैपेंड, देन दे स्टार्टेड यूजिंग कैटल्स, ऑक्स, और उन सबको बैल को ले जाते थे, फिर उससे हल जोतते थे, क्योंकि एक बार पहले खुदाई करनी होती. जब आप सीड डालते हो प्लांट के अंदर, किसी पॉट के अंदर, तो आप क्या करते हो, पहले उसको उस खुरपी से खोदते हैं, उसको प्लो करते हैं, ठीक है, फिर सीड डालते हैं. तो पहले प्लोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो है सॉइल अच्छे से खुल जाए, ठीक है. एंड देन उसमें सीड्स को सो करते हैं, सीड्स को डालते हैं, फिर उसको पानी देना होता है. इरिगेशन का मतलब वाटर देना फील्ड्स को. जो फील्ड्स को वाटर देते हैं ना, उसको इरिगेशन बोलते हैं. देन स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स. अब पेस्टिसाइड स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है, ऑल्दो इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, बट अगर पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है, अलग अलग कीड़े लग जाते हैं फसलों को, उनसे पूरी फसल ख़राब हो जाती है. तो पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना होता है. देन मैन्योरिंग, खाद देना होता है, फर्टिलाइजर्स डालने होते हैं, ताकि जो है सॉइल का कंटेंट अच्छा हो, सॉइल सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाएँ, ठीक है. मैन्योरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खाद डाली जाती है. देन उसके बाद में हार्वेस्टिंग होती है. हार्वेस्टिंग का मतलब जब फसल पक जाती है, जब फसल रेडी हो जाती है, तो उसको काटा जाता है. जैसे गेहूं को काटा जाता है, चावल को काटा जाता है, सब्जियों को काटा जाता है. हार्वेस्टिंग का मतलब उनको वहाँ से निकाला जाता है और फिर मंडी में जाके उसको बेचा जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, स्पेशली फॉर क्रॉप्स. अभी क्या होता है, अभी पैडी लगाई है, जब मानसून स्टार्ट होने वाला होता है ना, जब बारिशें शुरू होने वाली है, तो उस टाइम पे पैडी की फसल लगती है. पैडी मतलब चावल लगता है. तो चावल लगाते हैं, लगाते लगाते अभी नवंबर दिसंबर में या फिर अक्टूबर नवंबर में चावल को निकाला जाता है. इस टाइम पे वो निकलता है, तो उसको 4-5 महीने लग जाते हैं. फिर क्या लगाया जाता है, कहीं मक्का लगाते हैं, कहीं पे गेहूं लगाते हैं, कहीं पे और क्रॉप्स लगाते हैं, दालें लगाते हैं. तो हर क्रॉप का अपना अपना सीज़न होता है और हर क्रॉप जो है वो सीज़न में लगती है. एंड इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, 4 to 5 मंथ्स का प्रोसेस होता है क्रॉप्स का ग्रो करने का. और सब्जियां जो है वो कंपैरेटिवली जल्दी ग्रो हो जाती हैं, राइट. उनसे थोड़ा कम टाइम लगाती हैं सब्जियां ग्रो होने में, राइट. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड, एंड इट इज़ अ वेरी लेंदी एंड वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. फार्मर को बहुत सारा काम करना पड़ता है ग्रो करने के लिए, और बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है क्रॉप्स की ग्रोथ. देन फ्रॉम मार्केट वी बाय द थिंग्स एंड ब्रिंग देम होम टू कुक देम. और फिर क्या होता है, मार्केट से हम उनको घर लेके आते हैं और घर लाके उसको बनाते हैं. समटाइम्स वी बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द वेंडर्स इन द स्ट्रीट्स. हम कहाँ से लेते हैं, वेंडर्स से लेते हैं. ये वेंडर्स मंडी से लेके आते हैं सब्जियों को, राइट. मंडी में हर सुबह फ्रेश सब्जियां और वेजिटेबल्स आते हैं. एवरी मॉर्निंग मंडी के अंदर सुबह पहुंच जाते हैं सब्जी और वेजिटेबल्स, और वहां से ये स्मॉल वेंडर्स जो दुकानदार होते हैं, जिनसे हम जाके सब्जियां और फल खरीदते हैं, वो वहां से लेके आते हैं. अब क्रॉप्स के अंदर क्या होता है, द क्रॉप्स इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस एटसेट्रा. अब हमने तो बात करी क्रॉप्स में सिर्फ गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, चना, राजमा, ऑल दीज थिंग्स, राइट. एंड बाजरा, ये सब क्रॉप्स हो गई. वेजिटेबल्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गई. बट व्हाट अबाउट दीज oil seeds and spices. Oil seeds and spices are also very important because without oil seeds क्या होती हैं, जिनमें से ऑयल निकलता है. तो बिना ऑयल के और बिना स्पाइसेस के तो सब्जी नहीं बन सकती है. तो these oils and spices are also included in the crops. Oil seeds like groundnut, coconut, mustard, soybean, sunflower seeds are used to extract oil which is used for cooking. अब ऑयल सीड्स कौन सी होती हैं, ग्राउंडनट. ग्राउंडनट मतलब मूंगफली का तेल यूजुअली आंध्र प्रदेश में यूज करा जाता है. अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ऑयल यूज होता है. कोकोनट ऑयल इज मोस्टली यूज्ड इन केरला में कोकोनट ऑयल यूज होता है खाने में. मस्टर्ड ऑयल हमारा पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये वाला जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल यूज होता है. सोयाबीन इज अ रिफाइंड ऑयल. सनफ्लावर सीड्स, इन सब सीड्स में से ऑयल निकाला जाता है. एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना, उसमें से प्रोसेस होता है ऑयल निकालना का, ठीक है. तो वो ऑयल को निकाला जाता है और उस ऑयल को कुकिंग के लिए यूज किया जाता है. आर कुकिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट स्पाइसेस लाइक. अब ये स्पाइसेस है जो हमारे खाने में डलते हैं. दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स: ब्लैक पेपर, कार्डमम, सैफरन, नटमेग, सिनेमन, टर्मरिक, क्लोव्स. ये सब चाय में भी डलते हैं और खाने में भी डलते हैं. रेड चिलीज हो गई, सॉल्ट हो गया, हल्दी हो गई, राइट, टर्मरिक, हल्दी. सो ऑल दीज स्पाइसेस आर यूज्ड इन कुकिंग. तो इन सब की खेती भी होती है. मोस्टली स्पाइसेस की जो खेती है ना, जो स्पाइसेस का जो फार्मिंग है, वो केरला में की जाती है. केरला इज अ वेरी इट इज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस बेसिकली. Then these spices are sometimes dried and powdered collectively to make the powder of spices called garam masala. और इन स्पाइसेस को ड्राई करके इनका सूखा मसाला बनाया जाता है. जैसे हल्दी जो है हम ड्राई फॉर्म में यूज करते हैं, उसको सुखा के पीसा जाता है, राइट.
the farmers undergo a lot of laborious process to grow food for us. अब farmers को I told you कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है food को grow करने के लिए. The surplus grains, fruits and vegetables are stored in large stores called granary and in cold store. जब जो grains हैं उनको कहाँ रखा जाता है, स्टोर कहाँ करा जाता है, ग्रेनरी में, ठीक है. और सब्जियों को कहाँ स्टोर करते हैं, कोल्ड स्टोर्स में, जहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है ताकि सब्जियां और फ्रूट्स खराब ना हो. दीज आर लेटर सोल्ड इन द मार्केट और टू द डिपो और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. फिर इनको मार्केट में बेचा जाता है. पीपल गेट फूड आइटम फ्रॉम दीज स्टोर्स एट लेस रेट्स देन दी मार्केट. अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है और ये डिपो क्या होते हैं, यहाँ पे जो है वो होलसेल में मिलता है. अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको सस्ता सामान मिलेगा. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर दो सिस्टम विच आर स्पेशली मेंट फॉर पीपल हु हैव लो अर्निंग्स, जिनको जैसे राशन का जो सामान मिलता है जहाँ पे सस्ते में सामान मिलता है. तो जो लोग गवर्नमेंट ने उनके लिए स्कीम्स निकाली होती हैं कि दो पीपल हु आर नॉट अर्निंग मच और दोज हु आर पुअर, दे आर एबल टू गेट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है अनाज की, वो उनको वहाँ से सस्ता मिल जाता है. वी शुड नॉट वेस्ट द फूड एज इट टेक्स अ लॉट ऑफ लेबर टू ग्रो देम. अब आपने यहाँ पे देखा कि एक किसान को कितना काम करना पड़ता है खाना बनाने के लिए, फूड को ग्रो करने के लिए. इसीलिए बोला जाता है कि हमें फूड को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से बनाया जाता है. और जो खाने को वेस्ट करता है वो गॉड को रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है. तो खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको खाने को ही नहीं मिलता है. तो जब भी आपकी प्लेट में खाना आता है, यू शुड ऑलवेज से थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू द फार्मर्स हु आर ग्रोइंग फूड फॉर यू, एंड यू शुड ऑलवेज एक्नॉलेज एंड यू शुड ऑलवेज हैव ग्रैटिट्यूड फॉर वट एवर यू आर गेटिंग, राइट. एंड यू शुड नेवर वेस्ट योर फूड. और उतना ही खाना लेना चाहिए जितना आप खाओ, आपको एक्स्ट्रा खाना नहीं लेना चाहिए. भूख लगे तो और ले लो, पर खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट. खाना लोगों को मिलता नहीं है और खाना बहुत मुश्किल से बनाया जाता है, इसलिए खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए. नाउ points to recall: food comes to our home through different steps. We have read those steps. Farmer grows food for us. He reaps the crop and sells in the market. Reap का मतलब पकाते हैं crops को. We buy it from market. We also use spices which add flavor to our food. Now what you have to do, you have to read this chapter and you have to do this exercises on your own first of all, and then I'll be sending you the answers.